ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੀਲੋਗ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੀਲੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ 2026 ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ 2025 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ 2026 ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਹੋਵੇ। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਰਤੀ ਤਲਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਨ, ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ। ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਸਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰੇ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਿੱਡੇ ਗੋਟੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਰਾਤੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਤਰੀਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕ ਖਵਾਇਸ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ दिल ਦੇ ਵਿੱਚ अरमान ने, रब दी ज़ात सारे पूरे करे। अब आ जाएं जरा वीलॉग की तरफ। सियासत से अगर किसी शरीफ आदमी को नफरत हुई है, इसने दूरी इख्तियार की है, या फिर वो सियासत को कोई अच्छा काम नहीं समझता, तो इसकी भी सबसे बड़ी वजह जो है वो कल्ट है। जी इमरान खान साहब, जिन्होंने सियासत को इतना गंदा कर दिया है कि सियासत में मुखालफों की बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की पार्टी की तरफ से हुआ। मीना खान जैसा किरदार जिसने पंजाब असम्बली में इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू की, और उसकी उस बेहुदा गुफ्तगू को, उस पार्टी को डिफेंड करने में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। ये लोग साबित कर रहे थे क्योंकि मीना खान से एक सवाल ऐसा हो गया था जिस सवाल की वजह से वो गुस्सा कर गया और उसने ये जवाब दिया। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा, मैं बता चुका हूं, चक्री में जो शफी जान ने मोहसिन नकवी के बारे में बात की थी, वो तो मेरे ख्याल में दानस्ता तौर पे नहीं थी, वो तो सोची समझी थी। खैर, अब शफी जान ने एक और बकवास की है जो इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू उन्होंने की है। उज़मा बुखारी साहबा ने अपनी एक तकरीर में कहा कि कुछ जंगली आए थे जिन्होंने पंजाब असम्बली में किया। तो ये एक रूटीन का लफ्ज है। क्या वो जंगली नहीं थे जिन्होंने पंजाब असम्बली के तकद्दस को पामाल किया, जिन्होंने वहां के जो सिक्योरिटी वाले उनको धक्के मारे, उनके साथ बदतमीजी की, गालम गलोच की। आप हमारे घर में मेहमान आए और हमारे घर में आकर हमारे ही मतलब लोगों के साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो आपको जंगली कहा, बड़ा नॉर्मल वर्ड है। लेकिन शफी जान ने इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू की, जो है वो पंजाब की जो मिनिस्टर हैं उज़मा बुखारी साहबा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी कि हमें नहीं पता था कि उज़मा बुखारी को जंगली पसंद है। अगर हमें पता होता तो इनके लिए 4-5 जंगली हम पेशावर से लेके आते, बंदोबस्त करके आते, और फिर वो जंगली इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करके जाता। अब इससे अंदाजा लगा के ये कितने घटिया, गंदे और गलीज लोग हैं। ये मैं अब इनके घर की औरतों के बारे में कोई ऐसी बात करूंगा तो फिर मेरे दोस्त जो हैं वो बुरा मनाएंगे, मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि इसमें पूरी कौम का कसूर नहीं है। अगर वहां पर इनके घर की खवातीन के बारे में कोई गुफ्तगी की जाए तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब है, जो मुझे नहीं करनी चाहिए और मैं करूंगा भी नहीं। लेकिन ये अगर घर में अपनी खवातीन की इज्जत करते हों तो फिर ये बाहर कभी दूसरों की खवातीन के बारे में गुफ्तगू ना करें। पहले मीना जान का, पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में इंतहाई घटिया गुफ्तगू करना, और अभी जो स्पोक पर्सन है केपी के हुकूमत का, उनका पंजाब की
जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनके बारे में ये गुफ्तगू करना मेरे ख्याल में अ, लेकिन ये हर हद क्रॉस कर चुके हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि जिन लोगों ने, वो राजा कबीर साहब फरमाते हैं ना अपनी किताब के एक पन्ने पर, कि जिन्होंने रोज़ा रसूल पर रोज़ा रसूल पर हरकतें की हैं और वहाँ पर लिहाज़ नहीं किया, तो इनसे किस लिहाज़ की आप तवक्का कर रहे हैं? ख़ैर पीटीआई से जब पंजाब की तरक्की के मुकाबले में केपी की तरक्की का सवाल किया, वो परेशान हैं, तो फिर उन्होंने 1950 में 1950 में पेशावर यूनिवर्सिटी जो बनी, उसका क्रेडिट भी इमरान खान के खाते में डाल दिया। फिर अंग्रेज़ दौर में बने लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो है, उसका क्रेडिट भी अपने आप पे डाल दिया, और यूं ये सिलसिला चलता रहा, और गोरों के दौर के बहुत से मंसूबे जो हैं उन्होंने अपने खाते में डाल दिए। लेकिन एक लिस्ट जो है वो हमारे पास भी आई है, और जो जाहिर है उन्होंने खुद ही जो है वो लीक की है केपी के हुकूमत वालों ने, कि जो लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे कौन से मंसूबे हैं, तो हम बताते हैं। अक्सर टीवी टॉक शो में आप कहते हैं ना, चलो ठीक है जी, आपके साथ जो मेहमान बैठा होता है, आप 2 अस्पतालों के नाम बताएं 0 मीटर जो केपीके में बने हैं, तो वो इधर-उधर देखते हैं। तो उन्होंने मेहनत से वो तमाम मंसूबे जो हैं वो लीक किए। मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपको उनके मंसूबे बनाऊँ। पहला मंसूबा है उनका, हकीकी आज़ादी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, ये ज़िला स्वाबी में बना है। दूसरा है एब्सोल्यूटली नॉट किडनी सेंटर, ये नौशहरों में बना है। डी चौक अस्पताल बराए ज़हनी इमराज़, ये जो मंसूबा है ये पेशावर में मुकम्मल हो चुका है, और यहाँ पे इस पे लोगों का भला भी हो रहा है। रजीम चेंज मेडिकल कॉम्प्लेक्स डीआई खान में, इसमें 804 बेड जो हैं वो अवेलेबल हैं लोगों की खिदमत करने के लिए। तब्दीली मेमोरियल जनरल अस्पताल, ये ज़िला बन्नू में बना है। 804 मेडिकल कॉम्प्लेक्स, ये वो अपर दीर ऊपर वाली साइड पे। रियासत मदीना ट्रॉमा सेंटर, ये ज़िला कोहाट में बना है। यू टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आर्थोपेडिक्स, ज़िला स्वात में बना है। ज़िला स्वात में एक पता आपको, नवाज शरीफ और उनकी फैमिली ने एक किडनी सेंटर, एक अस्पताल अपनी जेब से भी बनाया था। तो ये उसी के साथ बिल्कुल बिल्डिंग है, यू टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आर्थोपेडिक, ज़िला स्वात है। अच्छा जी, विज़न 2025 आई स्पेशलिस्ट जो अस्पताल है, ये वज़ीरिस्तान में बना है। बाजोड़ जमहूरी कार्डियोलॉजी कॉम्प्लेक्स, ये पेशावर में बना है। अच्छा जी, कैनेडेड व्यू चिल्ड्रन अस्पताल, ज़िला मुर्दान में बना है। एहतसाब डायग्नोस्टिक लैब, ज़िला चतराल में बनी है। थर्ड एम्पायर मेमोरियल अस्पताल, ये मानसेहरा में बना है, और साजिश फिजियोथेरेपी अस्पताल बाजोड़ में बना है। और उसके अलावा कुछ और भी मंसूबे हैं, वो आपको अगले में बनाएंगे। ये वो मंसूबे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दिया है, क्योंकि इन तमाम मंसूबों में आपको एक चीज मुश्तरक नजर आएगी, वो शऊर है। क्योंकि हर सूबे को जब आप नाम सुनेंगे तो आपके जहन में आएगा शऊर। यहाँ पे कोई सड़क नहीं बनी, यहाँ पे कोई मोटरवे नहीं बना, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं बनी, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि तरक्की देने से या चीजें करने से नहीं, लेकिन ये तमाम चीजें शऊर है, और ये आपको शऊर के तौर पे मिली हैं। इनकी कोई बिल्डिंग नहीं है, इनका कोई साइट नहीं है, इन इन कॉम्प्लेक्स को कोई रास्ता नहीं जाता, यहाँ पे जाने के लिए आपको गाड़ी नहीं लेनी पड़ती, सिर्फ आपने अपने ज़हन में शऊर रखना है, और ये तमाम जो मंसूबे मैंने आपको गिनवाए हैं, उनसे आपने फैज़ याब होना है। फैज़ हमीद इमरान खान के हक में या खिलाफ गवाही नहीं देगा, बल्कि दोनों ही फटे चढ़ेंगे। इतलात पक्की हैं, 9 मई केस में इमरान खान का हतमी फौजी ट्रायल हो सकता है। फैज हमीद के वकील ने दावा किया कि उनके मौकल साबक वज़ीर आज़म और साबक बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ किसी भी मुकदमे में सरकारी गवाह नहीं बनेंगे। फैज हमीद के वकील बैरिस्टर मियां अली इशफाक ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि इनके मौकल इमरान खान के खिलाफ सरकारी गवाह बन सकते हैं। उन्होंने इन दावों को क्यास राय पर मुबनी और बेबुनियाद करार दिया। बैरिस्टर मियां अली इशफाक का कहना है कि मीडिया और सियासी हलकों में गर्दिश करने वाली इन इतलात में कोई सदाकत नहीं, जिनमें कहा जा रहा है कि फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में सरकारी गवाह बनने पर गौर कर रहे हैं। इनका कहना था कि ये तमाम खबरें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और महज क्यास रही हैं। इसका एक ही मतलब है कि जंग अपनी अपनी है, दौड़ अपनी अपनी है, ते कबर भी अपनी अपनी है। मतलब कि सब अपना अपना वेखणगे, किसी नु बचान नहीं आना। जो बातें हम लोग अगले जहान के बारे में सुनते थे ना, कि किसी ने एक नेकी भी नहीं देनी ਤੁਹਾਨੂੰ, सब बंदे ने अपनी अपनी नेकियां संभाल ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਧੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ कुछ नहीं देना। वो इस दुनिया से इमरान खान से फैज हमीद ने भी साबित करता है। खैर, बैरिस्टर गौहर ने कल रात को भीख मांगी, कहा हम पर तरस खाएं, मुज़ाकरात करें। हुकूमत का जमहूरी रवैया ये है कि उन्होंने पीटीआई की मुज़ाकरात की झूठी दावत को
बगैर जवाब के नहीं मोड़ा, यानी इसका मुस्बत जवाब है वो ज़रूर दिया है, और मेरे ख़्याल में यही जमहूरी रवैया है। बैरिस्टर गौहर की कल की गुफ्तगू पर वफ़ाकी वज़ीर तारिक फ़ज़ल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है। वफ़ाकी वज़ीर तारिक फ़ज़ल चौधरी ने 12 जनवरी कौमी असम्बली का इजलास है, तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा तजावीज़ लेकर स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर जाएँगे, और वफ़ाकी वज़ीर तारिक फ़ज़ल चौधरी का कहना है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल समेत दीगर पीटीआई के पुराने लोगों से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके पास मैंडेट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सियासी इख्तियारात महमूद अचकज़ई को दिए हैं, लेकिन अलीमा खान कहती है कि मुज़ाकरात की जो बात करेगा वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। उसका इमरान खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कोई तल्लुक नहीं है। कि इमरान खान साहब ने अगर इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई को दिए हैं, तो फिर अलीमा खान किस हैसियत से इन मुज़ाकरात को सबूतार करने की कोशिश करती है? क्या इमरान खान साहब हस्बे ममूल दोनों तरफ से खेल रहे हैं? बहन को कहा है कि तू पै जा इन्हां नूं, और अचकज़ई से कहा है कि तू इन्हां दे जाके पैर फाड़ ला। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या रिज़ल्ट निकलता है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा करने के लिए मतलब कि करने के लिए कह दिया है कि ज़रा मशवरा करें, बैठें और देखें कि हमने इमरान खान से मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने, तो उसका भी रिज़ल्ट निकल आएगा। और आप देख लीजिएगा, जैसे ही हुकूमत ने हाँ करनी है, इन्हां ने फिर नस जाना है। पंजाब में पहली बार इनकलाबी कदम उठाया गया है, सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट तलीमी इदारों में भी होनहार तलबा की जो है वो हौसला अफजाई होगी। वज़ीर तालीम हमारे दोस्त राणा सिकंदर ने 2025 को तालीम की बेहतरी के लिए इकदामात का साल करार देते हुए कहा है कि निजी तालीमी इदारा के तलबा को हज़ारों की तादाद में लैपटॉप देने का फैसला किया गया। वज़ीर तालीम पंजाब ने साल 2025 में महकमा तालीम की कारकर्दगी के हवाले से गुज़श्ता साल की तरह 2025 में भी तालीम की बेहतरी के लिए इकदामात करने का जो इरादा किया है। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक सूबे में 268 स्कूल अपग्रेड उस्तादजा की हरासमेंट के 37 केसेस पर फैसले हुए हैं, और तालीमी अदारों के तलबा को 10,000 लैपटॉप देने का जो है वो फैसला किया गया। तो सरकारी नहीं, बल्कि ये जो प्राइवेट हैं, जो बच्चे जो हैं इस पे कारकर्दगी दिखा रहे हैं, उनको भी लैपटॉप देने का फैसला किया गया। आज एक वीडियो एक स्कूल की मेरी नज़रों से गुजरी। नॉर्मल स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन वहां पे स्पेशल जो है वो स्कूल कोर्स कराए जा रहे थे, जिसमें आईटी के कोर्स थे, जिसमें जिम्नास्टिक के कोर्स थे, जिसमें स्पोर्ट्स के थे, जिसमें वो कोर्स थे जिनमें बच्चे जो है वो कमज़ोर हैं। बच्चों को म्यूज़िक के बारे में, बच्चों को जिम्नास्टिक के बारे में, और ये वो सरकारी स्कूल थे, और उन वीडियो को देखकर किसी भी जगह पे वो सरकारी स्कूल नहीं लग रहे थे, बल्कि वो प्राइवेट स्कूल लग रहे थे। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो पाकिस्तान के नहीं, किसी यूरोप के स्कूल लग रहे थे, किसी यूरोपियन कंट्री के स्कूल लग रहे थे, तो वो गलत नहीं होगा। बच्चों के लिए लैपटॉप अवेलेबल है, बच्चों के लिए आईपैड अवेलेबल है। वो बच्चे अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वो बच्चे आईपैड को यूज़ कर रहे हैं, वो बच्चे जाकर बाहर जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं उनके साथ स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वो बच्चे जो म्यूज़िक के टीचर हैं उनके साथ म्यूज़िक सीख रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। बिल्कुल यूरोप वाला माहौल है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो हमारे इस वक़्त मिनिस्टर हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे दोस्त हैं, राणा सिकंदर साहब, उनका अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। तो अब कोई एक ये ताना नहीं मार सकता कि मिनिस्टर का अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है या फिर लंदन या यूके में पढ़ता है। वो पाकिस्तान में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और शायद यही वजह है कि राणा सिकंदर साहब ने हर स्कूल को प्राइवेट कर दिया, क्योंकि उनको हर स्कूल का बच्चा अपने बच्चों की तरह प्यारा है। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान को, अल्लाह पाक शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज़ साहिबा को और हिम्मत दे और हौसला दे, और जो सिर्फ़ 2 साल में मैं अच्छा चले एक एक ना मैं अभी एक दोस्त से बात कर रहा था, वो आपसे बात करता चले। यूएई की बात हो रही है कि यूएई जो है वो इस वक़्त आपको पता है यूएई का और सऊदी अरब का कुछ ऐसे मसाइल चल रहे हैं। तो वो बातों-बातों में यूएई के बारे में काफ़ी एग्रेसिव बात कर रहे थे कि यूएई ने फलाँ जगह पे प्रॉब्लम किया, फलाँ जगह पे प्रॉब्लम किया, फलाँ जगह पे प्रॉब्लम किया। पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं। और मैं भी सुनता रहा, मैंने कहा ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है सऊदी अरब के बारे में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। तो खुदा ना करे कोई ऐसा वक़्त आए, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक़्त आए, सऊदी अरब हमारा भाई है और उसके साथ हमारा मुआहिदा भी है, और हरमीन शरीफ की जो हिफाजत का ज़ुम्मा हमें मिला है, उसके लिए तो हम दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ जाएँगे। तो साथ में उन्होंने मिसाल दी कि चौर साहब अगर पल्ले कुछ होवे ना, ते बंदा आकड़ जाता है। हमारी मैशियत अगर इस काबिल हो, तो उन्होंने मिसाल दी कि ट्रंप को मोदी ने कनाडा में मिलने से इनकार कर दिया था,
क्योंकि जो मोदी की मैशियत है ना, वो ये झटका सह सकती थी कि ट्रंप ने जो करना है कर ले, हम आपसे नहीं मिल रहे, क्योंकि उस वक़्त मोदी को पता था कि वो वहाँ पे जाएगा तो कोई पता नहीं ट्रंप जो है वो उसके सामने आसम मुनीर की और पाकिस्तान की तारीफ़ें करने शुरू कर दे, और फिर वो उसके लिए बड़ा एक शर्मिंदगी वाला लम्हा होना था, जो वो ज़ाहिर है हिंदुस्तान अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने वहाँ पे एक ही बात कही, मैंने कहा जनाब बात ये है कि आप 1900 मैं तो 1990 से सियासत को देख रहा हूँ, क्योंकि 88 वाली तो ज़ाहिर है हमारे ज़रा बचपन में गुज़र गई। ज़िया उल हक हमारे 8वीं 7वीं पढ़ते थे जब वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उसके बाद फिर बेनज़ीर नवाज़ शरीफ। अगर वो नवाज़ शरीफ का विज़न जो उन्होंने 1991 में इस मुल्क में लाए थे ना, जिसकी सबसे बड़ी निशानी जो आपका मोटरवे है, तो आज पाकिस्तान जो है वो कोरिया, सिंगापुर से आगे होता। अभी हम ना कह रहे होते कि यूरोप बन रहे हैं, हम लोग कब से यूरोप बन चुके होते। अब उसको भी छोड़ दें, 2013 में जब नवाज़ शरीफ साहब ने इक़्तिदार सँभाला था ना, तो पूरी दुनिया में हमारी पहचान दहशतगर्द मुल्क थी, ड्रोन हमले थी। लेकिन सिर्फ़ 3-4 साल के बाद पूरी दुनिया इस चीज़ को डिस्कस कर रही थी कि ऐसा पाकिस्तान में क्या तब्दीली आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत दुनिया की बेहतरीन मईशत बनकर उभर रही है। ये एक सवाल हो रहा था, लोग इसको डिस्कस कर रहे थे। और फिर हमें ये भी कहा गया कि 2030 में ऑफ़िशियली हम लोग G20 का हिस्सा बन जाएँगे। लेकिन इसहाक डार साहब मेरे साथ प्रोग्रामों में विज़िट थे कि ये 27-28 में बन जाएँगे, 2 साल पहले बन जाएँगे। वो जो अदारे हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं, बट हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर जो हमारे साथ हुआ उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये जो एक है ना कि हम लोग तगड़े नहीं हो सकते, हमारी मईशत ठीक नहीं हो सकती। ये जो हिंदुस्तान में जो मनमोहन सिंह साहब जो हैं वो ये जो लागू करके गए थे इस्लाहात, उसी को लेके चलते हुए आज नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को वो शाइनिंग इंडिया और पता नहीं क्या से क्या बना दिया। पूरी दुनिया की बहुत सारी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ वो इंडियन है, उसकी वजह है कि वो अपने उस सिस्टम को चलाते रहे। लेकिन हमारे सिस्टम को एक लाडले की मोहब्बत में जो तबाह बर्बाद किया गया, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। तो ये नहीं है कि हम कौम बाकौम हैसियत जो है वो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने बहुत कुछ किया है। हमने हर वो देखें, अभी हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखाए हैं। 10 गुना बड़ी हमसे फ़ौज है, लेकिन 4 घंटे में घुटने टेकने पे मजबूर किया है। हमने उनके मुकाबले में एटॉमिक बम किए हैं, और फिर एटॉमिक बम चलाने के बाद, धमाके करने के बाद एक मिथ थी कि पाकिस्तान तो गया। पूरी दुनिया ने अपने राब्ते ख़त्म कर लिए हैं, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के साथ सब कुछ ख़त्म कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ़ चंद महीनों के बाद हम फिर अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। मसला ये है कि हमारे सिस्टम को चलने तो दिया जाए। अब कौन चलने नहीं देते, कौन क्या करते हैं, फिर लंबी बहस, लंबी स्टोरी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बहसीत कौम पाकिस्तान किसी से पीछे रह सकती है, ये सवाल नहीं पैदा होता। तो वो चाहे यूएई हो, चाहे कोई और मुल्क हो, अगर हम अपने घर में ठीक हो जाएँ, आज भी देख लें, पंजाब में अभी ये जो 2 चक्कर लगा के आए हैं पेशावर के चंद दोस्त, वो जिस किस्म का बेहुदा टूर करके आए हैं, उसका मकसद क्या था? भाई आप क्या लागू करना चाहते हैं? क्या आपने केपी में दूध की नहरें बहाई हैं जो अभी लाहौरिया आपको वोट देंगे? बट लंबी बहस है। सलामत रहें, खुश रहें। मेरी तरफ से आपको नया साल मुबारक हो। अगले साल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।